नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने बीदर के पुराने शहर में प्रचार किया। औराद में रविंद्र स्वामी और उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल। शाम तो भगवान शिव के गले की शोभा है, खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का करारा जवाब। कर्नाटका विधानसभा चुनाव, कानून कल्याणकारी योजनाओं को बचाने के लिए कांग्रेस को दे वोट, खड़गे ने किया आग्रह। कर्नाटका चुनाव, बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र, जेपी नड्डा समेत मौजूद रहेंगे कई दिग्गज नेता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने प्रचार किया। अल्पसंख्यक का गढ़ माने जाने वाले पुराने शहर में खान ने जोरों शोरों से प्रचार किया। वह हर क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करके अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। लोगों ने खान का स्वागत करते हुए समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर लोगों ने कुछ शिकायतें भी सुनाई, जिन पर खान ने हल करने का वादा किया। इस दौरान खान के साथ वार्ड के काउंसलर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा आम चुनाव में औराद तालुका से आकांक्षी रहे रविंद्र स्वामी ने आज औराद शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनका नामांकन स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए वह और उनके एकता फाउंडेशन के 12,000 सदस्य औराद में इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भीमसेन शिंदे को समर्थन देने का फैसला करने की बात कही। इस मौके पर रविंद्र स्वामी और उनके समर्थक संभाजी बरगड़े और भाजपा के नेताओं ने उम्मीदवार भीमसेन शिंदे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होकर समर्थन देने का ऐलान किया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 5 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡದಂಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಂಧವರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ 5ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಡಿಜಿಪಿ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲ ಕುಂದಿರ್ತಾರ, ಹತಾಶ ಆಗ್ತಾರ, ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಅದರ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೀನ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏಕ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆದಿ ಈಗಿದ್ದಂಥ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದವರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದವರ, ಇನ್ನೂ 10 ಸಂಸ್ಥೆದವರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಔರಾದ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಜೈ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಭೀಮಸೇನ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 27 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ 2002ರಿಂದ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಪಢ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸಕನಿಗೆ 3 ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ಇಡೀ ತಾಲೂಕೇನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ್ರ ನನ್ನ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏಕ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ 7ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು KS ಇದ್ದಂತ
ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿವಿ. ನಾನು ಇಡೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿ ಒಂದು आज यहाँ पर एकता फाउंडेशन की तरफ से प्लेसमेंट बुलाई गई है और उसी में संभाजी ब्रिगेड का भी प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। 10-12 साल से संभाजी ब्रिगेड इस तालुके में काम कर रहा है। काम करते वक्त जो हमारा समाज का जो भूमि था 32 गुंठे गणेशपुर में, हम सब समाज की ओर से 19 तारीख को शिव जयंती के निमित्त वहां पर मराठा भूमि पूजन का आयोजन किए थे। आयोजन करते वक्त वहां पर प्रभु चौहान के कुछ कार्यकर्ता को हाथ को पकड़ के उन्होंने उस शिव जयंती को 144 कदम लागू किया। ये आवरा तालुके में 19 तारीख को एक काला दिन बोल के उस दिन ये हुआ। आज तक इस बीदर जिले में कौन सा भी राजनेता किसी महापुरुष के जयंती को 144 कदम कभी भी नहीं लगाया, लेकिन प्रभु चौहान ने लगाया है। तो आज हमारे गांव-गांव जाकर जो प्रभु चौहान के कार्यकर्ता जागो मराठा जागो ये यात्रा शुरू कर रही है। तो 19 तारीख को पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, तो 19 तारीख को हमारा 19 फरवरी को हमारा समाज जागरूक हो गया है। तो हमारा समाज को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो अगर प्रभु चौहान का जो विकास के बारे में अगर बोले तो विकास शून्य विकास यहाँ पर औरत में हो गया है। जो युवक को जो काम करना था, कारखाना, फैक्ट्री, दूध डेयरी, ऐसे जो प्रकल्प उन्होंने यहाँ पर औरत में नहीं ये किए, तो हमारे युवक पुणे मुंबई में जाकर काम करते हैं। तो अगर उस युवक को अगर यहाँ पर काम दिए तो मेरे ख्याल से ये परिस्थिति आज प्रभु चौहान को नहीं मिलती थी। तो हम संभाजी ब्रिगेड के ओर से हम भीम शिंदे साहब को जाहिर प्रतिभा दे रहे हैं, क्योंकि भीम शिंदे साहब एक एजुकेटेड पर्सनल है जो सभी समाज को साथ में लेके चलने वाले एक एजुकेटेड लोक प्रतिनिधि बोल के हमारे सामने उपस्थित है। तो आगे आने वाले चुनाव में 10 तारीख को हमको भीम शिंदे साहब को बहुमत से जीतकर लाना है। और मैं संभाजी ब्रिगेड के ओर से जाहिर प्रतिभा देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನ ಯಾವ ತರ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದ। ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಕೋನ್ ನೈ ಜಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರ ಸಂಘಟ ಉಳಿದ 2013ರಿಂದ 2022 ತನ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ ಒಂದ್ ದಿನ ಬಿ ಒಂದು 10 ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂಬುದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ। ನಾವು ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅವರ 10 ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದು ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೇವು ನಾವು ते करो ते मागून बघू ते नंतर तुम्हाला माहित नाही ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಬೇಕು। ನಾ 10-12 ವರ್ಷ ಐತೆ ಅವ್ರ ಸಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದ ಸಾಬ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ माझा काय माझं ಸಪರೇಟ್ पाहिजे बघा ಅಂತ ಸರಿ ನಾವು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಾನದಾನದವ್ರು ನಾವು ಇದ್ದೆವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನು ವಿಷಯ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂತದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಯಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಅದರ ಹೇಳಕತ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಪಿಯ ಧೋತಿಯ ಟಪ್ಲುವ ಅದರ ಕಾಮನ್ ಅವ್ರ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅಂತವು
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರು ಬಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದ್ ಸಲ ತೆಂಗಿನ ನೀರು 4 ಕುಡಿಸಿನ ಇದ್ದ. ನೀವು ಅನ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾ ಸಗಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹಿಡ್ದ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೋನ್ ನೈಜಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದ ರೀ. ಕೋನ್ ನೈಜಾರ ನೀವು ಮನೆ ಏನಾರ ಕಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರಿದ್ದೇವ. ಬರಂತ ದಿನಗಳದ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರುಗಳು ಏನೋ ಬರೋರ ಇವತ್ತೇನು ಬರೋದಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಲೀಡಿನ ಸೋಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಲೀಡಿನ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೀಡಿನ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. अब समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी राज्य कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर मोदी ने नाम लिए बगैर कहा, नाग भगवान शिव के गले का आभूषण है, मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह हैं। पीएम ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोडमैप की नींव को सशक्त करने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा, 2014 से पहले करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है। अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज यहाँ पर जिस तरह की भीड़ जमा हुई है, उससे इन दोनों पार्टियों की नींद उड़ जाएगी, जिन्हें कर्नाटक की जनता क्लीन बोल्ड करेगी। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार जो आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है, वो इस पूरे क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगी। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे यहाँ के किसानों और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए नए अवसर बनाएगा। उस पर तेजी से काम चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा और आरएसएस पर भरोसा न करे और यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करे कि उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रम और कानून मिले जो उनके हितों की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग भाजपा को लोकतंत्र को कमजोर करने और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने से रोक सकते हैं। मालवल्ली में कांग्रेस के एक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद खड़गे ने किसानों के लिए मेकेदातु पदयात्रा के लिए डीके शिव कुमार और भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की प्रशंसा की। एक सांसद के रूप में राहुल की योग्यता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, राहुल को सच बोलने के लिए दंडित किया गया है और भाजपा नेताओं पर झूठा आश्वासन देने और रोजगार पैदा करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें, उन्होंने अपील की। SC/ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में विशेष घटना कार्यक्रम के लिए कानून लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 गारंटी लेकर आई है और सत्ता में आने पर इसे लागू करेगी। आधी सदी से भी अधिक समय से कांग्रेस सत्ता में है और उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा प्रदान किया और संपत्ति बनाई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अब महज कुछ दिन ही दूर गया है, ऐसे में बीजेपी वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश में लगी है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि कर्नाटक के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र कल सुबह करीब 11 बजे बेंगलुरु में जारी किया जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए सभा 224 विधानसभा क्षेत्रों पर जनता से सुझाव मांगे थे, जो कि वेबसाइट, व्हाट्सएप और QR कोड के जरिए मांगे गए थे। सार्वजनिक स्थानों और पार्टी की रैलियों में डिब्बे रखे गए, जिनमें जनता घोषणा पत्र के लिए सुझाव डाल सकती थी। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली, गृहिणियों को नकदी, मुफ्त 10 किलो चावल जैसे गारंटियां दी हैं। इसके बाद से बीजेपी पर भी इसी तरह की लुभावन घोषणाएं करने का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे विजन डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। इसकी थीम होगी प्रजाध्वनि यानी जनता की आवाज, जिसमें 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर दो, 2% लिंगायत और वोकलिंगा में बांटने के बोम्मई सरकार के फैसले का उल्लेख भी होगा। बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट में कहेगी कि अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा के जरिए इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे पूरा किया। अब भी कांग्रेस पार्टी ऐसी गारंटी दे रही है जिसे भरा नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों से पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र को लेकर वह जमकर बरसे और कहा कि यह कागज पर रह गया, जबकि भाजपा द्वारा किए गए वादे पूरे किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के हितों की उपेक्षा की। वहीं दूसरी ओर भाजपा इन वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करने में सफल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता योजना लागू करेगी, लेकिन इसे लागू करने में विफल रही और 2009 के चुनावी घोषणा पत्र में फिर से वादा किया गया और फिर से नहीं किया जा सका, फिर से लागू किया गया। लेकिन भाजपा 2014 में सत्ता में आई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के रूप में इसे लागू करने में सक्षम रही, जिसके तहत लाखों किसानों को अपने बैंक खाते के माध्यम से नियमित आय प्राप्त हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो प्रमुख आंगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा और मिनी आंगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। हमारी पार्टी ने प्रमुख आंगनवाड़ियों में मेरी बहनों के लिए 15,000 रुपए और मिनी आंगनवाड़ियों में महिलाओं के लिए 10,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा और मध्याह्न भोजन के लिए काम करने वालों को 5,000 रुपए मिलेंगे। वाड्रा ने मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके नामित को 3 लाख रुपए और मिनी आंगनवाड़ियों में काम करने वालों को 2 लाख रुपए देने का भी वादा किया। उन्होंने भाजपा सरकार को उसके झूठ और धोखे के लिए फटकार लगाते हुए कहा, इसने राज्य में इतने बुरे तरीके से शासन किया कि इसे 40% कमीशन सरकार का टैग मिल गया। खाकी से लेकर हाथ जोड़कर राजनीतिक उम्मीदवार तक बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि कैसे उनके निर्वाचन क्षेत्र चामराजपेट के कुछ हिस्सों में लोग लगभग 2 दशकों से दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, फिर भी आकांक्षाएं हैं। राव उन चुनौतियों के बारे में बात करते उन्होंने कहा कि राजनीति में नौसिखिए के रूप में सामना करना पड़ता है, वह भी कांग्रेस के एक अनुभवी राजनेता जमीर अहमद खान के खिलाफ, और कहते हैं कि अगर राजनीतिक दलों ने अपने राजनेताओं को प्रशिक्षित किया तो हम नहीं करेंगे, अब इस स्थिति में आ गए हैं। यह अब तक बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उतारा गया है जो 2 दशकों से राजनीति में है। कांग्रेस उम्मीदवार जमीर अहमद खान, जहां तक राजनीति का संबंध है, मैं नौसिखिया हूं, लेकिन लोक सेवक के रूप में मैं नौसिखिया नहीं हूं। मैं 3.5 दशक से जनता की सेवा में हूं, तो यह एक अलग तरह की प्रतियोगिता है। यूपीएससी में चयन का तरीका चुनाव से अलग है, लेकिन दोनों में संवैधानिक निकाय है।
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटका उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें चामराजपेट के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस द्वारा कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत चल रही जांच को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की पीठ ने पूर्व मंत्री द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी। नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुनने के बाद अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ खान की याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने इस मामले को 2 हफ्ते बाद विचार के लिए सुनवाई रखी है। 2022 में खान के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कथित तौर पर यह पाया गया था कि उनकी संपत्ति 47.5 करोड़ रुपए की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 2031% अधिक थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने बीदर के पुराने शहर में प्रचार किया और आज में रविंद्र स्वामी और उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल। शाम तो भगवान शिव के गले की शोभा है, खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का करारा जवाब। कर्नाटका विधानसभा चुनाव, कानून कल्याणकारी योजनाओं को बचाने के लिए कांग्रेस को दे वोट, खड़गे ने किया आग्रह। कर्नाटका चुनाव, बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र, जेपी नड्डा समेत मौजूद रहेंगे कई दिग्गज नेता। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।